ભાઈ આની બુક છે પ્રવચનોની? આની પ્રવચનની બુક નથી. નથી. થેન્ક યુ. ઓમ ઓમ નમોસ્તુ 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 નમો ઓરિયંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો વૈરિયાણં નમો વજ્જાયણં નમો લોયે સહસ્રાવણં ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જતુ શાસનમ નમઃ સમયસારાય શ્વાનુભત્યા ચકાશતે ચિત્ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતર્ચિતે. આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. એનો પ્રથમ જીવ નામનો અધિકાર. જીવનું શું સ્વરૂપ છે એ અધિકાર ચાલે છે. પણ જે જીવના સ્વભાવને અભેદ આત્માને ટંકોત્કર્ણ એક શુદ્ધ આત્માને જાણતો ન હોય, જાણતો નથી, એવા આત્માને એમ કયા કરે કે તું આત્મા છો, તું જ્ઞાયક છો, તું ટંકોત્કર્ણ છો, તું એક છો, તું નિત્ય છો, તું ધ્રુવ છો, એમ કહેવાથી પણ એ જીવ આત્માને જાણી શકતો નથી. બાલચંદજી આવો ને, આગળ આવો ને, અહીંયા ક્યાં પાછળ બેઠા? આવો. पंडाल बड़ा है, कोई वादा नहीं. क्या कहा? ये गाथा 9-10 चलती है. उसका अंदर प्रश्न क्या आया कि जो व्यवहार नहीं परमार्थ नो प्रतिपादक છે એમાં ફરીથી વાંચેલી. હવે એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે વ્યવહાર નહીં પરમાર્થ નો પ્રતિપાદક એટલે કહેનારો છે. વ્યવહાર નહીં પરમાર્થ ને બતાવે છે, કહેનારો છે. તો એ કેવી રીતે છે, કેવી રીતે પ્રતિપાદન કરે, કેવી રીતે સમજાવે છે જગતના જીવોને? વ્યવહાર પરમાર્થને સમજાવવા માટે હોય છે. કેમ કે પરમાર્થને જે સમજતો નથી અનંતકાળથી, અને એમ એને કયા કરે કે તું આત્મા છો, તું નાયક છો, તું એક છો, તું ટંકોત્કર્ણ છો, તું શુદ્ધ છો, બુદ્ધ છો, નિત્ય છો, એમ આત્માને કયા કરે તો આત્મા સામો જીવ સમજી શકતો નથી. ત્યારે આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે જે ઠીકાળી અભેદ સામાન્ય શુદ્ધ આત્માને સમજતો નથી એવા જીવોને વ્યવહાર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. તો એ વ્યવહાર પરમાર્થનો કહેનાર છે, પ્રતિપાદક છે. તો એ વ્યવહારનું સ્વરૂપ શું છે કે જે પરમાર્થને બતાવે? વ્યવહાર અપરમાર્થને પ્રસિદ્ધ કરે તે ખરેખર અસદભૂત વ્યવહાર છે, સદભૂત વ્યવહાર નથી. એ પણ આવે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં એ વિષય લીધો છે કે ન સમજતો હોય ને એમ કે મનુષ્ય તે જીવ, એકેન્દ્રીય જીવ, બેન્દ્રીય જીવ, એવી સ્થૂળ વાત પણ સમજાવવા માટે લેવી પડે જ્ઞાનીઓને. શું થાય બીજું? હા,
પણ આ તો અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે ભાઈ. અહીંયા કે છે કે વ્યવહારનો પ્રતિપાદક છે, કહેનાર છે. વ્યવહાર દ્વારા સામોજીવ નિશ્ચય સુધી પહોંચી જાય છે કે આમ કહેવાનો આશય છે. તો એ વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે? વ્યવહાર પરમાર્થને કેવી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે, જણાવે છે. એની ઉત્તરરૂપ ગાથા છે આ. આમાં એટલું જ એક કેવું છે, કેટલો વ્યવહાર સંમત છે અધ્યાત્મમાં. આગમની વાત જુદી છે. આગમના સારભૂત અધ્યાત્મ છે એમ સંતોએ ફરમાવ્યું છે શાસ્ત્રમાં. અધ્યાત્મ છે એ આગમના સારભૂત છે. જયસન આચાર્ય ભગવાનના શબ્દો છે. આધાર આપતા હોઉં ને તો શ્રદ્ધા બેસે. આગમના સારભૂત અધ્યાત્મ છે. આગમમાં તો અનેક પ્રકારે અસદભૂત વ્યવહારથી પણ સમજાવે છે, સમજતો ન હોય એને. અથવા તો જે જીવ હિંસામાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય એને સમજાવવા માટે કહેવું પડે કે ભાઈ શરીર તે જીવ છે. શરીરને દુઃખ આપતા આત્મા હણાઈ જાય છે, માટે શરીરને જોઈને તું હિંસાની પ્રવૃત્તિ કરીશ નહીં. એ શરીરને અમે જીવ કયો છે એ હિંસાની નિવૃત્તિ માટે કયો છે. એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી એની રક્ષા કરજે હનીશમાં. એ શરીરની મુખ્યતા એ શરીર જીવ ન હોવા છતાં શરીરને પણ જીવ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા પ્રયોજન હિંસાની નિવૃત્તિનું છે. જેમ રાખને મસળતા પાપ તને લાગતું નથી, એમ જો શરીર ને તું છેદીશ ને ભેદી નાખીશ તો તને મોટું પાપ લાગશે. ત્યાં એમ ન કહેવાય કે શરીર જુદો ને આત્મા જુદો. એટલો વ્યવહાર કોઈ પ્રયોજન અર્થે કહેવામાં આવે છે કે શરીર તે જીવ, એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી જીવ. એમાં હિંસાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે જીવની. એ પ્રયોજનીય છે. હવે અહીંયા પ્રયોજન બીજું છે. આ વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે એમ કોઈ નિકટવર્તી જીવ નિકટવર્તી ગુરુની પાસે પ્રશ્ન કરે છે કે પ્રભુ આપ કહો છો કે આત્મા એક છે, શુદ્ધ છે, નિત્ય છે, ટંકોત્કીર્ણ છે. એમાં પ્રભુ હું સમજી શકતો નથી. કાંઈક મને હું સમજી શકું એવી રીતે સમજાવો તો હું સમજી જઈશ. સમજવાનો કામી પૂછે છે, કામી. ત્યારે એવા જીવને સમજાવવા માટે વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે, તો પણ વ્યવહાર અનુસરવા યોગ્ય નથી એમ સાથે સાથે કહેતા આવે છે. તો આ વ્યવહાર કેવો કે જે પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે અને આમ કહેતા એ પરમાર્થને ઈશારાથી સમજી જાય છે. એ વ્યવહાર કેવો, કેટલો, કેમ? તો કે જ્ઞાન તે આત્મા છે, જાણે તે આત્મા, દેખે તે આત્મા. એ વ્યવહારથી જીવ સમજી શકે છે. કેમ કે એ અભેદનો ભેદ છે. અભેદના ભેદને ખરેખર સદભૂત વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. અહીંયા વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે એ સમજાવતા કહે છે કે જે સમજતો નથી આત્મા આત્મા આત્મા, એમાં સમજતો નથી કે આત્મા કોને કહેવો કે જાણે તે આત્મા, દેખે તે આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા, દર્શન તે આત્મા.
એમ અભેદમાં ભેદ કરીને જ્યારે સમજાવે છે ત્યારે શિષ્ય સારી રીતે સમજી શકે છે. એટલું પ્રયોજન છે. વ્યવહારનું પ્રયોજન કેટલું છે? લિમિટેડ છે. પછી અભેદને જે સમજી ગયો હોય અને અનુભવમાં અભેદ આવી ગયો હોય, જ્ઞાન તે આત્મા, દર્શન તે આત્મા કરતો નથી. એ છૂટી ગયો ભેદ. ભેદ રહી ગયો, પણ ભેદનું લક્ષણ આ તો અધ્યાત્મ, પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. પ્રશ્ન કર્યો ને કે વ્યવહારનો પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે, હું સમજતો નથી. એને સમજાવવા માટે અભેદમાં ભેદનો વ્યવહાર કરીને સમજાવે છે. આ જે છે ને 9-10 ગાથા, એ 9-10 ગાથા અભેદનો ભેદ છે. જ્ઞાન તે આત્મા, દર્શન તે આત્મા, એ અભેદનો ભેદ અભેદને બતાવે. અભેદથી ભિન્ન અભેદને ન બતાવી શકે. શું કહ્યું? ફરીને જ્ઞાન તે અભેદ આત્માથી છે. અનુભવના કાળમાં એ જ્ઞાનની પર્યાયને આત્મા અભેદ છે, ભિન્ન નથી. જ્ઞેયની પ્રધાનતામાં એ આત્મા છે. ધ્યેયની પ્રધાનતામાં એ પર્યાય પરદ્રવ્ય છે. તો વિરોધ આવ્યો કે અનુભવ કરીશ તો વિરોધ મટી જશે. તો અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન તે આત્મા. કેમ કે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. અભેદનો ભેદ, પણ જે અભેદથી ભિન્ન છે, શરીર આદિ, કર્મ આદિ, રાગ આદિ, એ કઈ અભેદનો ભેદ નથી કે એ ભેદ અભેદને બતાવી શકે. એના તાકાત નથી અસદભૂત વ્યવહારમાં. આ સમયસાર એટલે તો જ્ઞાનનો સમુદ્ર છે. વ્યવહારની વાત પણ સમજવા જેવી છે. આ વ્યવહાર અભૂતાર્થ, વ્યવહાર અભૂતાર્થ, વાત તારી સાચી છે, પણ જ્યાં સુધી અભેદ સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી પોતે પણ ભેદનો વિચાર અભેદમાં પ્રાપ્તિ માટે કરે છે, અને જ્ઞાનીઓ પણ બીજાને સમજાવે છે અભેદનો ભેદ. તો અહીંયા કહે છે અભેદનો ભેદ તે પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે. જે અભેદ ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ્ઞાયક, એનાથી તદ્દન જે ભિન્ન છે, શરીર આદિ અસદભૂત વ્યવહાર, એ કઈ અભેદને બતાવી શકતો નથી. એ વાત કરી હિંસાની નિવૃત્તિ માટે કહેવામાં આવે એ જુદો વિષય, અને દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવી જાય અને એનો ભેદ કરીને સમજાવે એ જુદી વાત છે. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ છે ત્યાં સમજવું, તે ત્યાં ત્યાં તે આચર્ય આત્માર્થી જન. એ અહીંયા અભેદના ભેદને વ્યવહાર કયો છે. તત્વાર સૂત્ર આદિમાં, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશમાં શરીરને પણ જીવ કયો છે. એ હિંસાની નિવૃત્તિ માટે છે. વ્યવહાર નહીં, શરીર પણ જીવ છે. હિંસાની નિવૃત્તિ થાય. રાખને વસોડતા જેમ પાપ નથી લાગતું, એમ તો અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર વાંચીને એકેન્દ્રી, બે ઇન્દ્રી, 3 ઇન્દ્રી, 4 ઇન્દ્રી, 5 ઇન્દ્રી, એમાં હિંસામાં ચડી જાય તો મરી જાય. ધર્મમાંથી ગયો, પુણ્યમાંથી ગયો, અને પાપની પ્રવૃત્તિ લાગુ પડશે તને. માટે શાંતિથી, અપેક્ષાથી એને સમજવું જોઈએ. અહીંયા અભેદનો ભેદ તે
પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે. જ્ઞાન તે આત્મા, જાણે તે આત્મા. એ પણ કેમ કે એ જ્ઞાન આત્માથી અભેદ હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા છે. પણ જે રાગ આત્માથી અભેદ થતો નથી તે રાગ તે આત્મા નથી. હવે જે અભેદ નથી શુભ ભાવ, એનાથી ધર્મ થાય. હર હર કાળો કેર કર્યો જગતના જીવો. એ તો આપણને ગુરુદેવે બચાવી લીધા. ક્રમે ક્રમે અપેક્ષા સમજાવતા 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 આ જ્ઞાન તે આત્મા, તો જ્ઞાન તે આત્મા કેવળ વ્યવહાર પરમાર્થના પ્રતિપાદક માટે છે. તું અભેદ સુધી પહોંચ નહીં અને જ્ઞાનને એકાંતે સર્વથા ભેદને જો તું આત્મા માનીશ તો અભેદ સુધી નહીં પહોંચ. અભેદને પ્રાપ્તિ માટે ભેદ છે, ભેદ આશ્રય કરવા માટે નથી. ભેદ તે આત્મા નથી, ભેદ તે પરદ્રવ્ય છે, અભેદ તે સ્વદ્રવ્ય છે. એવી વસ્તુ આમાં ભરી છે. એક એક ગાથા એક મહિનો હાલે એવું આમાં માલ ભીરો છે. પણ અમારો ભાવ તો અહીંયાથી નક્કી કરીને આવ્યો હતો કે થોડા દિવસમાં ઘણી ગાથાઓ લઈ લેવી છે. અહીંયા ટીકા એની આપણે થઈ ગઈ છે ટીકા. ફરીથી જરા હું ઉપરથી વાંચી લઉં. પ્રથમ જે શ્રુતથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે છે. જો અહીંથી શરૂઆત કરી છે, શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય કેટલો છે? એ જેટલો કેવળ જ્ઞાનનો વિષય છે ને એટલો જ વિષય શુદ્ધ જ્ઞાનનો છે. કેવળી ભગવાન કોને જાણતા હશે? કે કેવળ શુદ્ધ આત્માને કેવળ જ્ઞાન વડે, એ કેવળ જ્ઞાન વડે જાણે છે. અને નીચલી ભૂમિકામાં ગ્રસ્ત અવસ્થામાં એની પાસે કેવળ જ્ઞાન તો નથી, તો શેના વડે જાણે છે? કે શુદ્ધ જ્ઞાન વડે જાણે છે. એ શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય ઉપાધિભૂત તત્વ કેટલું છે? કેવળ શુદ્ધાત્મા, ઓનલી માત્ર ફક્ત જ્ઞાન તે આત્મા. એ પણ ભેદ પડ્યો છે ભાઈ, એમાં વિકલ્પ ઉઠે છે. એ શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય નથી. શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય તો અભેદ ટંકોત જ્ઞાયક દ્રષ્ટિનો વિષય છે જ છે. સ્વપર નહીં. એકલો કેવળ, કેવળ ઓનલી કહ્યું ને, માત્ર ફક્ત બધું કાઢી નાખ્યું. કેવળ કહીને એક એક શબ્દની કિંમત હોય, ઓછા શબ્દોમાં વધારે કહેવાતું હોય તો વધારે શબ્દનો પ્રયોગ જ્ઞાની કરતા જ નથી. જે જીવ પ્રથમ જે શ્રુતથી, અભિમુખ જ્ઞાનથી, આત્મજ્ઞાનથી કેવળ શુદ્ધાત્માને, ત્યારે શુદ્ધાત્માને જાણે કે નહીં, શુદ્ધ પર્યાયને જાણે કે નહીં, કે જ્ઞાનનો વિષય જ નથી. સાંભળતું પહેલા તો શાંતિથી સાંભળજે ભાઈ. તને એ પ્રકારનો અસદભૂત વ્યવહારનો પક્ષ છે, અમને ખબર છે. અહીંયા તો કે છે કેવળ શુદ્ધ આત્માને અભેદ. શુદ્ધ હો, ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. એક સમય માત્ર પણ ભગવાન આત્મા અશુદ્ધ પર્યાયોની મધ્યમાં રહેવા છતાં પણ એ શુદ્ધતા છોડીને કિંચિત માત્ર એમાં અશુદ્ધતા આવતી નથી. એવું શુદ્ધ આત્મા અનાદિ અનંત નિરપેક્ષ શુદ્ધ છે. આ સંવર નિજા અને મોક્ષ સાપેક્ષ શુદ્ધ છે. આ તો નિરપેક્ષ શુદ્ધ. ભાવ કર્મનો અભાવ થાય ત્યારે શુદ્ધ ના, એ વાત જુદી છે. એ લેવી છે. હમણાં 11 ને બદલે આ વિચાર આવ્યો કે 13મી ગાથા લેવી છે. કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે છે. કોણ? આત્મા. એનું સાધન શું આત્માને જાણવાનું? કે શુદ્ધ જ્ઞાન.
શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્ર જ્ઞાન નહીં, ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન. અભિમુખ અભિગચ્છથી આવ્યું. આત્માની સન્મુખ થઈને જે આત્માને પ્રત્યક્ષ જાણે છે. કે પ્રત્યક્ષ તો કેવડી જાણે કે એ તો પ્રદેશ પ્રત્યક્ષની વાત છે. અહીંયા પ્રત્યક્ષ છે એ તો અતિન્દ્રિય આનંદ એને પ્રત્યક્ષ છે. એટલે આનંદ મૂર્તિને જાણી લીધો. એક આનંદનો નમૂનો લીધો તો આખો આત્મા આનંદમય છે. જેમ સાકરની ગુણમાં બમ્બી મારે, 2 દાણા ચાખે કે શેઠ 1300 રૂપિયા ગુણના લાગશે, તો કે ચાખો ને. ચાખી 2 દાણા ચાખ્યા, ત્યાં આખા ગુણનો બોરીનું શ્રદ્ધાન થઈ ગયું. આનંદની ચકણી ચોથે ગુણમાં થોડી થઈ. शुरू करें क्या? મારો આખો આત્મા. रजनी भाई, हेलो, आवाज आती है? हाँ जी करे तो अब शुरू कर ले, आधा घंटा हो गया है। अभी 23 मिनट हुआ है ना, 24 मिनट बराबर है, आधा हुआ है। ठीक है हाँ जी करे। देखिए, पहले सभी से कह दो कि सभी अपने कैमरे और वो चालू कर लें, तो उससे अच्छा रहेगा। हम चेहरा भी देख सकेंगे सबका और प्रश्न भी कह सकेंगे, सब समझ सकेंगे। भले ये ग्रंथ है ना लालचंद भाई का, ये वाला पोस्टर हटा दो। सबको विनती है भाई कि जो भी बोले तो अपना वीडियो चालू रखें, इतना कटिंग होना चाहिए अपने को। whoever speaks please keep your video on minimum। देखिए, इसमें हमने करीब 10-12 क्वेश्चन निकाले हैं आज की चर्चा से। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम प्रश्न बोलेंगे, जिसको भी उत्तर समझ में आए वो जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने की कोशिश करें। और यदि उत्तर सही नहीं लगेगा तब हम कहेंगे कि यह उत्तर सही नहीं है, तो दूसरा भाई या बहन बोल सकता है। फिर भी सही नहीं लगेगा तो सही उत्तर क्या है वो हम बताएंगे। मैंने 2 लोगों को ही अवकाश रहेगा उत्तर देने का, तीसरे में समय नहीं बिगड़े इसलिए उत्तर हम दे देंगे। लेकिन सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें और ये भी और कर लें। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो इसमें ये है कि आगम का सारभूत क्या है और किन आचार्यों ने का आधार और किन ग्रंथों का आधार लालचंद भाई जी ने आज की चर्चा में लिया है। अध्यात्म का सार अध्यात्म है। अध्यात्म है आगम का सार। अच्छा, कौन कौन से आचार्यों का आधार दिया था? जयसनाचार्य, एक तो था जयसनाचार्य, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी दिया था। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मा को नित्य, ध्रुव, शुद्ध, मुक्त कहने पर भी आत्मा को क्यों नहीं समझा जा सकता? पहले बेस से समझना चाहिए। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, अलग अलग सब जने अपना वीडियो ऑन करके। इतना कहने से मालूम नहीं पड़ता है मुमुक्षु को, तो पहले बेस से समझ करके बाद में अभेद में जाना चाहिए। चलिए, और कोई? अभेद को भेद से समझा जाता है और भेद तक अभेद तक पहुंचने के लिए। हमने आत्मा माने आचार्यों ने, ज्ञानियों ने आत्मा शुद्ध है, एक है, नित्य है इत्यादि उपमाओं से कहा, फिर भी क्यों नहीं समझता है आत्मा? देखिए, इसका कारण क्या है कि कुछ भेद मात्र से पूरे आत्मा को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम उन भेदों से अभेद पे जाएं। जब जब जीव भेदों पे रुक जाता है तो अभेद को नहीं पकड़ पाता है। हमें भेदों पे नहीं रुकना है, उन भेदों से अभेद तक जाना है, तब आत्मा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, शरीर को जीव कहने का क्या आशय है? हिंसा से बचने को।
हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई? नहीं तो फिर राख को मचल देने से कुछ जब नहीं होता है ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपने तो उत्तर सही दिया है। और भी कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? रसिक भाई બીજું કાંઈ? નહીં નવદસ ગાતાના ક્વેશ્ચન આન્સર સરસ છે. हाँ, मैंने प्रश्न थे, शरीर को जीव कहने का क्या आशय है? क्यों शरीर को जीव कहा जीव जाता है? जीव है वो अमूर्त है और हाँ, मूर्त देह से उसका पता चलता है। हाँ। देखो, एक तो यही रजनी भाई ने जवाब दिया है, हिंसा से बचने के लिए। दूसरा क्या है कि संसार अवस्था में जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी शरीर के में ही देखे जाते हैं। तो हमें भी, हम मनुष्य हैं, ये व्यवहार से जो कहा जाता है वो गलत नहीं है। अच्छा, वो हिंसा से निवृत्ति के लिए शरीर को जीव कहा गया है। इसमें उन्होंने 2 ग्रंथों का आधार लिया था लालचंद भाई ने। उन दोनों ग्रंथों के नाम बता सकते हैं आप लोग? લાલચંદભાઈ के प्रवचन में 2 ग्रंथों का आधार दिया था. एक तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय था। नहीं। नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन 2 ग्रंथों का आधार लेके कहा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक और तत्वार्थ सूत्र दोनों में ये वर्णन आता है कि शरीर ही जीव है, क्योंकि शरीर के माध्यम से जीव की पहचान भी होती है और शरीर को जीव बताने से जीव हिंसा से निवृत्त हो जाता है। अभी आगे अगले अगला टाइम प्रश्न है। पर अगले टाइम पर हम शास्त्र का नाम भी लिख लेंगे। हाँ, बराबर है। हाँ, परीक्षा में अगला है, आएगा। निकटवर्ती भव्य जीव को निकटवर्ती गुरु से क्या प्रश्न करता है? देखो, 2 बातें हैं, 2 निकटवर्ती हैं। भव्य जीव को भी निकटवर्ती लिया है और गुरु को भी निकटवर्ती लिया है। ऐसा शिष्य अपने गुरु से क्या पूछता है, क्या प्रश्न करता है? व्यवहार जो निश्चय को दिखाता है वो क्या बोलता है? रजनी भाई आपको छोड़ के कोई दूसरा जवाब दे। हाँ, सही है, सही है। सभी लोग अपने वीडियो ऑन करें। सब लोगों ने सुना है, 30 लोग हैं यहाँ पर, कुछ न कुछ तो आपने को ख्याल होगा। उत्थानिका पढ़ लो, उत्थानिका। देखिए साहब, उत्तर ये है कि शिष्य ये कह रहा है कि हम जितना आप भेद से कह रहे हो उससे पूरा अभेद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। आज ज्ञानियों का उद्देश्य निकटवर्ती ज्ञानी निकटवर्ती शिष्य को भेद से क्यों समझाते हैं? क्योंकि वह समझ नहीं सकता है, इसलिए भेद करके समझाते हैं। कहते 1-2 भेद कहे, मैंने तू नहीं समझा, तब आगे पे चैप्टर आता है ज्ञान के बारे में। ज्ञान के भेद से आत्मा को समझाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से वह निषेध क्यों किया है? वो भेद में अटकने के लिए नहीं है, भेद में से अभेद जाने के लिए। बताया तो उसने बेचारे ने परमार्थ को है, तो हम क्यों उसका निषेध करें? इतना काम तो किया है ना उसने। अभी उनसे अभेद में जाना है। देखिए, अच्छा है, भेद ग्रहण नहीं करना. हाँ सुनो, भेद से जो व्यवहार के भेद से परमार्थ को बताया है, तो फिर व्यवहार का निषेध क्यों? क्योंकि हमें यदि जिस पहली मंजिल पे जाना है तो सहारा सीढ़ी का रहेगा, लेकिन सीढ़ी ही अवलंबन लेके बन जाए तो मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। ये कहते थे कि सीढ़ी नहीं हो
क्योंकि हमें सीढ़ी पे तो है, तो कोई अपने मकान में सीढ़ी ही नहीं बनाए, केवल पहली और दूसरी मंजिल बना दे, तो दूसरी मंजिल में कैसे पहुंचेगा? वो सीढ़ी पर ही खड़े होके रह जाए तो भी दूसरी मंजिल में नहीं आएगा। तो सीढ़ी व्यवहार का इतना ही सहारा है, सीढ़ी जैसा, पगथिया जैसा, दादरा जैसा, कि उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ो। माने जितने भी आगम में व्यवहार के कथन आए हैं, न तथा, पंचाध्यायीकार ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है निश्चय और व्यवहार की। निश्चय की परिभाषा तो इतनी सी है, न तथा, और व्यवहार की परिभाषा ये है कि हम जो कुछ कहेंगे वो निश्चय के बारे में कहेंगे। ध्यान देना जरा, व्यवहार का स्वरूप ही है मात्र वो निश्चय को बताए। यदि कोई ऐसा व्यवहार हो जो निश्चय को ना बता के निश्चयाभास को बताए, उसे आगम में व्यवहार की कोटि में नहीं डाला है। और निश्चय की परिभाषा इतनी छोटी लिखी है, माने तत्वार्थ सूत्र जैसी सबसे नोणा नाड़ो एक शब्द सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, ऐसे ही पंचाध्यायीकार ने निश्चय की परिभाषा लिखी है, ना तथा। तब शिष्य ने पूछा, साहब इसका अर्थ ने हम नहीं समझे। का व्यवहार ने जो कुछ भी वर्णन किया है वैसा मैं नहीं हूं, न तथा। बस आप निश्चय निकाल लोगे। अब जितने भी कथन व्यवहार के आते हैं उनमें यह सूत्र लगाना है, ना तथा। ना तथा का अर्थ क्या है कि ऐसा मैं नहीं हूं, वस्तु ऐसी नहीं है, अर्थात भेद रूप नहीं है, संयोग रूप नहीं है, विभाव रूप नहीं है, वस्तु तो इनसे अतीत है। चलिए अगला प्रश्न है, 9-10 गाथा का विषय क्या है? सभी आत्मा ज्ञान स्वभावी है। श्रुत ज्ञान उसको मुख्य करके आत्मा सभी ज्ञान स्वभावी होने से ये श्रुत ज्ञान का वो दृष्टांत देके बताया है व्यवहार करके। अच्छा, और कोई? व्यवहार की प्रतिपादिका भी बताई है और उसकी निरर्थकता भी बताई है कि अपने को निश्चय में जाने के लिए व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। 9 और 10 गाथा का आशय मात्र इतना है कि अभेद को भेद से बताना है, बस। संक्षिप्त सार इतना है, बताना है अभेद को, बताएंगे भेद से। अब हमें भेद में उलझना नहीं है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, उपादेय नहीं मानना है, बल्कि भेदों से समझ करके, भेदों को गौण करके अभेद तक जाना है। दोनों गाथाओं का एक ही आशय है, आचार्यों को अभेद बताना था। जैसे कि कहते मिलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना है, मिलेच्छ भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मिलेच्छ हो जाना उचित नहीं है। बस अगला प्रश्न है, शरीर, राग, कर्म क्या अभेद को बताने में समर्थ है? यदि नहीं तो क्यों? ये भी एक जीव के ही भेद हैं, शरीर, राग और कर्म। आज भी भाई श्री ने लिया था, ये जीव के भेद हैं, लेकिन ये जीव को बताने में समर्थ हैं या नहीं? ये समर्थ नहीं है, पर ज्ञान के भेद से बताने में समर्थ है। बहुत बढ़िया उत्तर है। क्योंकि अब प्रश्न आपसे हम करते हैं कि ये बताने में समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि वो जड़ है, पर द्रव्य है, पर द्रव्य है, वो स्वद्रव्य है, वो अभेद का भेद ही नहीं है। सुनो, आपको कोशिश से करना है भाई श्री की भाषा में उत्तर देना है। बराबर, ओके ओके ओके, राइट। ज्ञान है वो स्वद्रव्य है और बाकी है परद्रव्य है। भाई श्री ने इसमें वो अभेद का भेद नहीं है रमेश भाई। हाँ, नहीं, ये जो है ये वास्तव में असद्भुत व्यवहार के विषय है।
बराबर। शरीर और कर्म। तो क्या है कि जो असद्भूत है वो लक्षण बनने में समर्थ नहीं है, इसलिए बराबर ये आत्मा को नहीं बताएंगे। हिंसा से तो निवृत्ति करा देंगे तुम्हें, बराबर। लेकिन आत्मा को नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा भेद है जो अभेद को नियम से बताता है? सद्बुद्ध वाला नहीं, ज्ञान ते ऐसा आत्मा। कौन सा भेद है ज्ञान जो नियम से सद्बुद्ध अभेद को? ज्ञान जाने थे आत्मा, देखे ज्ञान थे आत्मा। ज्ञान ते आत्मा। बराबर, बहुत बढ़िया। ज्ञान एक आत्मा का ऐसा भेद है कि जो नियम से अभेद को ही बताएगा, क्योंकि जहां जहां आत्मा होती है वहां वहां ज्ञान होता है, और जहां जहां ज्ञान होती है वहां आत्मा होता है। ये अविनाभावी संबंध होने से यह आत्मा को बताता है। इसी बराबर। की में एक और क्वेश्चन है कि ज्ञान और आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध है, अनित्य तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध है कि कोई संबंध नहीं है? नित्य नित्य तादात्म्य। तादात्म्य। फिर से सोच के और बता। अनित्य भी बोल सकते हो अपन एक पर्याय के हिसाब से। हाँ, यहाँ पर जिस ज्ञान की चर्चा है, क्योंकि प्रकट ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाता है, ज्ञान गुण से आत्मा को नहीं जाना जाता है। इसलिए जो प्रकट वाला ज्ञान है उसका आत्मा के साथ कथनचित नित्य तादात्म्य संबंध है। कल के प्रवचन में आएगा, माने अगले संडे को जो चलेगा ना, इसी का सेकंड पार्ट, उसमें भाई श्री ने बहुत अच्छा सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि पहले अनुभव के पहले कि इसका है अनित्य तादात्म्य संबंध, वो अनुभव के काल में है नित्य तादात्म्य संबंध। तब शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया है, साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा, जब तक ज्ञान पर्याय अभिप्राय में अपने को गायक से बिल्कुल अभेद अनुभव नहीं करेगी, तब तक उसे निर्विकल्पता नहीं होगी। इसलिए उसके अभिप्राय की अपेक्षा से नित्य तादात्म्य संबंध है, वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा से अनित्य तादात्म्य संबंध है। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है अपने पास में, ज्ञान आत्मा से अभेद है, कथनचित अभेद है कि सर्वथा अभेद है? भाई रमेश कथनचित जी प्रश्न रिपीट करिए अगेन। ज्ञान आत्मा से कथनचित अभेद है कि सर्वथा अभेद है? कि सर्वथा भेद है? 3 क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 है। ज्ञान आत्मा से सर्वथा भेद है, सर्वथा अभेद है कि कथनचित अभेद है? अपेक्षा से देखो तो तीनों सच्चा है। बताओ, हमें स्पष्ट करो तीनों का। ज्ञान गुण और आत्मा एक ही है सर्वथा। हाँ, जब हम गुण ज्ञान की की पर्याय। अपेक्षा लेंगे तो सर्वथा अभेद कहेंगे। बहुत बढ़िया। अभी सद्बुद्ध व्यवहार से देखो या असद्बुद्ध व्यवहार से देखो तो ज्ञान की एक समय की पर्याय। हाँ, ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से कथनचित ध्येय से देखो, ध्येय से तो कथनचित है। कथनचित अभेद। कथनचित इसलिए है कि अनुभव पर्याय में ही होता है, एक समय की है, इसलिए भेद है, भेद कथनचित है। भेद है। अनुभव की टाइम या कथनचित अभेद है। हाँ, देखो ज्ञान पर्याय आत्मा से कथनचित अभेद है, सर्वथा भेद नहीं है। कर्म शरीर राग को तो सर्वथा कहा है, लेकिन ज्ञान को कभी भी सर्वथा भिन्न नहीं कहा है। बराबर। निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक राग कहीं है कहीं नहीं है, शरीर कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन ज्ञान कहीं हो कहीं ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ज्ञान मौजूद रहता है। इसलिए उस पर्याय को, माने मात्र जानना जानने रूप पर्याय को भी सर्वथा अभिन्न भी कह सकते हैं, और एक एक समय की अपेक्षा से कथनचित अभिन्न भी कह सकते हैं। दोनों अपेक्षाएं समझ लेना। अगला प्रश्न है, एक मिनट टीका में प्रारंभ में रमेश जी क्या कहा है? रमेश जी ध्येय हाँ जी। ध्येय की अपेक्षा से, ध्येय की अपेक्षा से जब ये मात्रा को देखे तभी ज्ञान की पर्याय और सर्वथा त्रिकालीनात्मा भिन्न।
हाँ सर्वदा भिन्न है, तो तीनों बात आ गई ना। हाँ बराबर, माने दृष्टि के विषय की अपेक्षा से, ध्येय की हाँ। अपेक्षा से ज्ञान पर्याय, क्या पर्याय रूप ज्ञान, उत्पाद में वाला ज्ञान सर्वथा भिन्न है। बराबर। और ज्ञान प्रधान की अपेक्षा से देखा जाए तो वही ज्ञान जो अपने लिए ज्ञायक से अभेद मान रहा है, अर्थात अपने लिए ज्ञायक ही मान रहा है, ज्ञायक रूप में ही घोषित कर रहा है, वह कथनचित अभेद है। अभिनय की अपेक्षा। हाँ चलिए, तो एक प्रश्न हमारा ये था, टीका के प्रारंभ में क्या कहा है कि प्रथम जो श्रुत ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जानता है। तो ये जो टीका में कहा है कि कौन से शुद्ध ज्ञान की बात है यहाँ, आगम के रूप शुद्ध ज्ञान की बात है, मति रूप शुद्ध ज्ञान की बात है, कि निर्विकल्पता के शुद्ध ज्ञान की बात है, भाव शुद्ध ज्ञान की बात है। तीन शुद्ध ज्ञान है, आगम का शुद्ध ज्ञान, और दूसरा भाव शुद्ध ज्ञान, या मति शुद्ध ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान। औषध ज्ञान। रमेश जी प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जो टीका प्रारंभ की ना भाई श्री ने, तो आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं श्रुत ज्ञान से जो आत्मा को जानता है। तो इसमें जो श्रुत शब्द है वो तीन में से कौन सा श्रुत लेना, एक भाव श्रुत, एक द्रव्य श्रुत, एक मति श्रुत ज्ञान वाला श्रुत। भाव श्रुत ज्ञान, भाव भाव श्रुत। श्रुत, भाव श्रुत। भाव श्रुत केवल ज्ञान, केवल केवल ज्ञान, मात्र केवल ज्ञान कहो, केवल ज्ञान तो केवली वाले को होगा, उसके पास श्रुत ज्ञान। भाव मैंने श्रुत जब श्रुतवान तक का आत्मा श्रुत है, को जाना भाव मति जाता है, तब तक भाव श्रुत ज्ञान से ही जाना जाता है। बराबर। हम और आप देखें जरा कि हम आए, आपके पास में भाव श्रुत ज्ञान नहीं तो नहीं है, और आत्मा को तो हमें जानना है, तो हम भाव श्रुत कैसे पैदा करें जिससे हम आत्मा को जान सकें। मैंने दूसरी भाषा में कहें, हमारा श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान वाला श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान कब बने, कैसे बने? जब भी उसका विषय आत्मा बने। हाँ, और कोई भाव में दृष्टि। जब जब पर्याय में ज्ञान को लें हम, तब हाँ, एक क्षण के पर्याय में जब आत्मा आए, तब उस समय वो ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान कहेगा। हाँ देखिए, भाषा आपकी करीब करीब 80% सही है, उसकी टोन केवल चेंज करना है। देखिए क्या होता है, जो श्रुत ज्ञान अपने को श्रुत ज्ञान रूप नहीं मान करके पूर्ण परमात्मा में स्वीकार करता है, वह श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान हो जाता है। हमें अपने ज्ञान में अपने को शुद्ध ज्ञान ही मानेंगे, शोभन वाला मानेंगे, तो कभी हमारा भाव शुद्ध ज्ञान नहीं बनेगा। बराबर। मैंने श्रुत आज हम की पढ़ा उपाधि। रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुमुक्षु उसे कहते हैं लोग कि जिसे मोक्ष की इच्छा हो, लेकिन वास्तव में मुमुक्षु वो नहीं है जिसे मोक्ष की इच्छा हो। मुमुक्षु वह है जिसके स्वभाव के बल पर मोक्ष की भी इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि अपने को मैं मुक्त परिपूर्ण हूं। मानता, मोक्ष स्वरूप भी हूं मैं। परिपूर्ण मानता हूँ। हाँ, अपने को परिपूर्ण जिसने देख लिया है, माने जब तक मोक्ष की इच्छा रहेगी तब तक आप अपने को बंधवाला मानते रहो, और जो बंधवाला मानता है उसके जीवन में मोक्षता प्रारंभ ही नहीं होगी। सुंदर। इसलिए पहले से ही निर्णय करो कि मैं परमात्मा हूं, मैं मुक्त हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। न्यालवे लिखते हैं ना, मुक्ति हो तो हो, मैं तो वर्तमान में मुक्त हूं। मुक्ति तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, हमें हमें क्या कहना मुक्ति के अभाव में, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। चलिए अंतिम दो प्रश्न हैं। श्रुत ज्ञान का उपादेय भूत तत्व कौन है? हमारे आपका जो श्रुत ज्ञान है ना, या कि ज्ञानियों का श्रुत ज्ञान है, इन दो सभी श्रुत ज्ञान ले लो। वास्तव में श्रुत ज्ञान का उपादेय भूत तत्व कौन है लालचंद भाई की भाषा में?
शुद्ध आत्मा, हाँ शुद्ध आत्मा है। हाँ, और कोई? परम शुद्ध पारिणामिक भाव। नहीं, लालचंद भाई की भाषा में, हमें आपकी भाषा नहीं चाहिए। देखिए, भाई श्री ने कहा था मात्र शुद्ध आत्मा, आपने कहा जो शुद्ध आत्मा, उसमें भाई श्री ने मात्र शब्द लगाया था। अब ये देखें जरा कि हमारे ज्ञान में मात्र शुद्धात्मा कितने काल तक या अभिप्राय में कितना उपादेय लगता है, जबकि हमारे वो आपके शुद्ध ज्ञान में उपादेय तत्व मात्र शुद्धात्मा है। आगम ज्ञान भी उपादेय नहीं है, गुरुदेव का प्रवचन सुनना उपादेय पना नहीं है, दर्शन पूजन एकासन उपासन उपादेय नहीं है, मात्र शुद्धात्मा उपादेय है। हमें ज्ञानियों से सीखें जो थोड़ा, और अपने उपयोग को मैंने संक्षिप्त कराएं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध पर्याय के मध्य में रहने पर भी आत्मा शुद्धता क्यों नहीं छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? हाँ, प्रश्न है, अशुद्ध पर्याय के मध्य में रहने पर भी, भाई श्री ने लिया था, आत्मा शुद्धता नहीं छोड़ता है, तो क्यों नहीं छोड़ता? वो तरीका उसका शुद्ध स्वभाव है, स्वभाव का अभाव नहीं होता। देखो, ये तो सत्य है, आप भाई के शब्दों में भाई उत्तर जी दे के रहे शब्द हो। बरोबर बरोबर, राइट राइट राइट। अच्छा सुनो, अगली क्लास अब इसी ढंग से चलेगी, तो आप सबको मूड बनाना है इस ढंग से सुनने का, और पेन कॉपी लेके बैठना है भाई श्री की। राइट राइट, ઓકે એટલો દુર્લભ કર્યું એટલું ધ્યાનમાં આવી ગયું. बरोबर। आप बोलो। और कोई? और कोई? देखो अभी हम लोग रमेश जी ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दो और पूछो कि ये सच्ची बात है कि क्या खोटी बात है। ऑप्शन माने दाखला तरीके जैसे बोलो फॉल्स एंड ट्रू। कि जितना केवल ज्ञान का विषय है उतना ही शुद्ध ज्ञान का विषय है, ये स्टेटमेंट सच्चा है कि खोटा है? जितना केवल ज्ञान का विषय है उतना ही शुद्ध ज्ञान का विषय है, ये बराबर है कि खोटा? बराबर नहीं है। बराबर है। तो अभी वो सब लोग बोलेंगे कि भी बराबर है या नहीं। हाँ ठीक। फिर माने बोला कि रमेश भाई, माने वो आपका प्रश्न का जवाब अब रह गया। हम दे रहे। देखो, वो शुद्धता क्यों नहीं छोड़ता, वो प्रश्न था ना। चूंकि आत्मा पर्याय मात्र से रहित होने के कारण, चाहे अशुद्ध पर्याय का हो चाहे शुद्ध पर्याय, दोनों के कारण शुद्ध है, क्योंकि कोई आत्मा पर्याय रूप नहीं होता है। बराबर। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आप लोग हमसे प्रश्न पूछना। अंतिम प्रश्न आज का है, आत्मा को जानता है, इसमें प्रथम आत्मा का क्या अर्थ है और दूसरे आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? आज का अंतिम प्रश्न। ऐसे ने कहा था आत्मा को जानता है। प्रथम आत्मा ज्ञान। पहले आत्मा का आशय कौन सा क्या है और दूसरे आत्मा का आशय क्या है? पहले आत्मा का ज्ञान निश्चय व्यवहार से कहा है और दूसरा है उसमें निश्चय से कहा है, दूसरा व्यवहार से कहा है। हमारी समझ में नहीं आया। ये तो उपयोग में उपयोग है, ऐसी बात होगी। आत्मा पर्याय में प्रथम है आत्मा ज्ञान की पर्याय प्रथम है और दूसरी है शुद्ध आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये उत्तर आया। पहले आत्मा का अर्थ है पर्याय वाला आत्मा और दूसरे आत्मा का अर्थ है द्रव्य वाला आत्मा। पर्याय वाला आत्मा द्रव्य वाले आत्मा को जानता है। उल्टा मत बना लेना कि द्रव्य वाला आत्मा पर्याय वाले आत्मा को जानता है। इसलिए पहला आत्मा का शब्द है पर्याय और दूसरे आत्मा का शब्द है द्रव्य। अब आप लोगों से को कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ लो, जितना आपके पास टाइम हो। रमेश भाई, परिणामी आत्मा अपरिणामी को जानता है, बरोबर? ऐसा भी कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, बराबर। परिणामी, क्योंकि परिणमन हुआ तब तो जानने की क्रिया हुई ना। परिणमन नहीं होगा तो जानना होगा ही नहीं। हाँ, बराबर सही। एक प्रश्न आप आपसे पूछे हम, भाई श्री ने परिणामी आत्मा
कौन से गुण स्थान में कहा है और अपरिणामी आत्मा कौन से गुण स्थान में कहा है? चौथे भाई श्री अपने प्रवचनों में अधिकांशतः इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, परिणामी आत्मा और अपरिणामी आत्मा। तो बराबर परिणामी आत्मा कौन से गुण स्थान की अपेक्षा से है और कौन से गुण स्थान तक रहता है, और अपरिणामी आत्मा कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक रहता है? परिणामी आत्मा तो चौथे गुण स्थान में हो गया ना, हाँ, क्योंकि परिणामी बराबर है, सही है। हाँ, अपरिणामी का गुण स्थान नहीं होता। क्या कहा? सभी इधर गुण स्थानों में, सभी गुण स्थानों में। नहीं, गुण स्थान ही नहीं होता। अपरिणामी आत्मा अनादि अनंत होने से किसी भी गुण अनादि स्थान में नहीं है वो, और सभी गुण स्थानों में है। हाँ, उसमें अनेक अपरिणामी अंश है, आत्मा अनादि अनंत है। अनादि अनंत है। बराबर और परिणामी आत्मा, बहुत अच्छा जवाब था आपका। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग के काल में ही परिणामी आत्मा होता है। होता अभी है। हम और आप परिणामी आत्मा नहीं है, बराबर बराबर, थैंक यू। क्योंकि हमारी हमारी परिणाम तो पर्याय में ऊपर द्रव्य में लगे हुए हैं। हम परिणामी आत्मा कहाँ से शुद्ध हो जाएंगे? बराबर। और कोई पूछो। सिद्ध सिद्ध भगवान भी परिणामी आत्मा है। हाँ, सिद्ध भगवान ही परिणामी आत्मा है। 24 घंटे प्रणमन हो रहा है उनमें, निर्विकल्प प्रणमन है वहां पर। और क्योंकि देखो, आपने सिद्ध दशा की अपेक्षा से पूरी आत्मा का परिचय दिया ना, तो परिणामी आत्मा ही होंगे। वहां भी परिणमन तो शुद्धता रूप का चलता ही रहता है ना। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। सिद्ध सिद्ध पर्याय जो प्रकट हुई तो सिद्ध की पर्याय भाव 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 शक्ति के कारण वही भाव रहेगा तीनों काल। हाँ, वो तो पूर्ण शुद्ध प्रणमन है वहां। बराबर बराबर। अपने यहाँ पे चौथे गुण स्थान आदि में तो माने अपूर्ण शुद्ध प्रणमन है, इसलिए वो पूर्ण शुद्ध परिणामी है। बराबर, एकदम बढ़िया। अब एक प्रश्न आपसे पूछे कि चौथे गुण स्थान में जो आत्मा परिणामी बना है, तो अपने को परिणामी आत्मा मान के बना है कि अपरिणामी आत्मा मान के बना है? अपरिणामी। ये तो इजी था, अपरिणामी मान के। ये तो इजी श्रद्धा था। में तो अपरिणामी हूँ, इस भाव से ही वो उमड़ा था। हाँ, मैंने देखना है, अपरिणामी को ऊर्ध्व करो, सॉरी, परिणामी को ऊर्ध्व करोगे तो परिणामपना कभी नहीं प्रकट होगा, और अपरिणामी को ऊर्ध्व करोगे तो आत्मा परिणामी बन जाए। बराबर। चलिए, और कोई? बस अच्छा रहा ये सवाल जवाब, सबको इंटरेस्ट आया। अभी ऐसा ही करेंगे कंटिन्यूएशन नेक्स्ट टाइम, बहुत सुंदर। बराबर है? हाँ जी, हाँ Yes. जी। रसिक भाई आप ले लो। more people will question, more people will answer the question. जिनवाणी रसिक भाई ले लो। जिनवाणी लेनी है। हाँ, ले लो ले लो। यद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप ताग जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सत बार है वंदना सत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ तो 9 बार 9 कर मंत्र का काव्य कराता हूँ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायुज्ञानम नमो वैज्ञानम नमो लोये संवसावणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वरियंताणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्व आयुज्ञानम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्व वैज्ञानम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्व सावणम। बोलिए सर्व अंतर्मुख मुद्रावंत जिनेन्द्र भगवान तो की जय हो। जय हो। जय हो जिनेन्द्र मार्गदाता परम तालगार अनंत 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 उपकारी कान गुरुदेव नो जय जय हो। हो। जय हो जय हो। स्वानुभव विभूषित प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। जय हो। जय जय हो हो। द्वादशांग मई भगवती जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो जय हो। जय हो परम वितराग परम पवित्र सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जयकार हो। जय हो जय हो। जय जय जयकार हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बधाने जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। चलो, कुशल जी रिकॉर्डिंग धन्यवाद।